So, very good morning to all of you. It is great to start a morning with a knowledge session. And I guess here at KCF, we have always believed in empowering change, which is where we thought that we need to use this time of lockdown in the most productive manner. Correspondingly, we have organized a series of seminars, and now we have started doing these workshops. The seminars are a one-day event, whereas the workshops are longer, which is where we get a chance to deep dive into issues and get more meaningful insights. Uh, it is very gracious of Mr. Manan Vasa to accept our invitation to come and address this workshop. I am exceedingly hopeful and optimistic that these 7 days will change the way you look at yourself and your businesses. So the format of these workshops would be that we will have 7 consecutive days of this workshop, wherein you will get a lot of shastras which Manan has been talking about. And in these sessions, the entire sessions shall be managed by Manan. The question answer sessions, etc., also shall be managed by him. As the Kutch Corporate Forum, we shall be coming in to assist you in case you have any difficulties whatsoever. You can always reach out to Vivek, our secretary, who shall be helping out to, in any case if you have any difficulties. So let me take this chance to introduce Mr. Manan Vasa. He is an IIM Calcutta and IIM Kozhikode alumni. He has been featured in the top 50 entrepreneurs from NM College of Commerce. He is the inventor of Make It Happen framework and has trained and coached over 15,000 people in productivity and efficiency. Manan has also had the distinction of having trained 1,700 chartered accountants. He is a mentor and productivity coach to a few members in the KCF family also, thankfully. And most importantly, he is an authority on human productivity and efficiency. So that is the introduction of Manan. Now, before we start, I am going to actually thank all those who have been involved in getting this workshop in place. So foremost, I would like to thank our speaker who shall be starting in a while, Mr. Manan Vasa. I would like to profusely thank Vivek and his team for doing wonderful work out here for us and making all these sessions possible. Besides that, the KCF committee members who have always been a pillar of support and have always encouraged all of us to go ahead and spread knowledge to the society. Thank you, good morning, and over to Manan Vasa. All right. Good morning, everybody. Can you all see my screen? If you can see my screen, please type S in the chat box so I know that you can see my screen and life becomes easy and simple for you and me both. Okay, perfect. So good morning, everybody. At the outset, Philip Bhai, thank you so much for giving me this opportunity to speak in front of Kutch Corporate Forum. It means a lot. We know the kind of stalwarts you people have been promoting. It is just my honor and privilege that, you know, you're extending this platform to me. Special thanks to Ashok Bhai Shah of VTrans also, you know, for always watching my back and giving me this amazing opportunity, you know, to give as much as I can over the next 7 days. So let us get started. Hemal Bhai, thank you so much for joining in. I am seeing a lot of people over here who I already know. So thank you so much. I will keep the language extremely simple for a very simple reason. We are having people from all walks of life, all you know, all aspects of life, different people from different places. मैं लैंग्वेज बहुत सिंपल रखूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बातों का डेप्थ कुछ कम हो जाएगा. और मैं पहले से ही बिलीव करता हूँ कि भाषा जितनी साफ सुथरी रखे, जितनी सिंपल रखे, उतना लोगों के लिए आसान हो जाता है चीज़ों को सुनना, समझना और इम्प्लीमेंट करना. यहाँ पे हम लोग एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए नहीं आए कि लोग, यू नो, वाहवाही करे कि कितना अच्छा बोलता है वगैरह. इफ यू वांट टू डू दैट, यू नो, विल डू इट सम अदर टाइम. और यहाँ पे अभी 270 लोग हैं, शायद 300 350 के आसपास चले जाएंगे हम लोग ओवर द नेक्स्ट 2-3-4 days.
तो मुझे सब लोगों का ध्यान रखना है. If you want any kind of customization, take it offline with me so that I can talk to you intelligently if you want to, but I'm going to keep a universal platform for everybody to benefit. Okay, so if ever you have a problem in the kind of language that I'm using, just feel free to use the chat. I'm very friendly with using the chat, so I will try and make as much adjustments as possible. So the series is called Productivity Shastra. 7 घंटे का वर्कशॉप है, लेकिन हम लोगों ने एक एक घंटे में इसको स्लाइस किया है. तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं, आप बेझिझक नॉन स्टॉप जितने सवाल पूछने आप पूछते रहिए. एट एन ऑपरच्यून टाइम, जब वो मैटर आ जाएगा, जब वो पॉइंट आ जाएगा, वो टाइम पे मैं आपको वो सारे सवालों के जवाब दूंगा. एंड प्रोबेबली आफ्टर द थर्ड सेशन आई विल ओपन अप फॉर अ लॉट ऑफ Q&A, so that you people get a further chance to go deeper into the subject and stuff like that. पर it is very important and essential कि आप 7 के 7 दिन अटेंड करिए, क्योंकि पिक्चर का क्लाइमैक्स जो है वो डे 3 पे आने वाला है, और फिर डे 4, डे 5, डे 6 एंड डे 7 इज फुल ऑफ सरप्राइजेस फॉर ऑल ऑफ यू पीपल. और ये वर्कशॉप स्टाइल है. वर्कशॉप और सेमिनार में फर्क ये होता है कि एक सेमिनार में बंदा बोलते रहता है और सामने वाला सुनते रहता है, और फिर भगवान मालिक की आपने क्या इम्प्लीमेंट किया, क्या इम्प्लीमेंट नहीं किया, कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ. हम ये पहली बार थैंक्स टू फिलिप भाई एक यूनिक अटेम्प्ट कर रहे हैं वेबिनार में एक साथ 200, 300, 400 लोगों के साथ, जहाँ पे आप एक्चुअली कुछ काम भी कर पाओ. तो आज मेरी तरफ से बोलना थोड़ा ज्यादा होगा, कल मेरी तरफ से बोलना थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन परसों से आई वांट टू सी टू इट कि हम सब लोग कुछ ना कुछ साथ में मिलके काम करें, so that life becomes easy for you all. और आपको खाली ज्ञान ना मिले, you are producing some massive gains also for yourself in your life. So without wasting any more time, let's get started. Over the next 7 days, what I really want to cover is how do you double your business in the next 90 days without adding any stress and without taking any more risk compared to what you might be taking right now. अभी कुछ लोग बोलेंगे सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से उठ के आया है ये लड़का, क्या बोल रहा है. अभी तो धंधा जिंदा रहे, वो भी बहुत बड़ी बात है. सर्वाइवल के वांदे. मनन भाई, ये कहाँ आप लेके जा रहे हो हमको? What if I told you that over 1035 entrepreneurs, they have literally doubled their business or doubled the rate of their business in the next 90 days using the framework which I am going to teach you and share with you over the next 3 days in bits and pieces. People have actually done this. हम लोग कोविड-19 कोरोना बोल रहे हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी की दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता. पहले जीएसटी था, उसके पहले डिमोनेटाइजेशन था, उसके पहले कांग्रेस सरकार थी, उसके पहले 50 स्कैम थे. ये सारी चीजों से हम लोग हमेशा उभर के बाहर आए हैं. हमारी प्रोडक्टिविटी, आवर एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, आवर एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन इज ऑलवेज इन आवर हैंड. सो there is lots that we can do regardless of the very difficult circumstances that we are seeing in the outside world. तो मैं एक सिंपल चीज आपको बोलूंगा, आप लोग ये 7 दिन 1 घंटे के लिए जब मेरे साथ हो, आप भूल जाओ कि बाहर दुनिया में कोविड-19 या कोरोना नाम की वस्तु है, क्योंकि घर में बैठ के 5000 चीजें करने की है जो हम लोगों ने 500 साल से की नहीं है. लेट्स बिगिन टू टच अपॉन दैट एस्पेक्ट्स. तो बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, धंधा डबल करने के लिए क्या लगता है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, धंधा डबल करने के लिए क्या लगता है? गिरीश भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इट मीन्स अ लॉट. थैंक यू फॉर योर लव. धंधा डबल करने के लिए क्या लगेगा? जिगरा, पैसा, स्पीड. आप लोग जितने ज्यादा आंसर्स दोगे, लाइफ बिकम सो इजी एंड सिंपल फॉर यू एंड मी. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट वे टू पार्टिसिपेट इन द वेबिनार. And I really read your answers. In fact, I'll spend 2 hours in reading your chats after we are done. I'm not kidding. Jigra, mindset, passion, investment planning, SOPs, dedication, cash planning, risk taking ability, more quality, strategy. भूख होना चाहिए. Man power and infrastructure, mindset, budgeting, resource technology, SOP, strategy, fighting spirit, technical knowledge, consistency, hard work on every department. धंधा बढ़ाने के लिए कस्टमर चाहिए. ब्यूटीफुल. Motivation, strategy, honesty, creative ideas, willpower, liquidity, ethics, alertness, plan, fund, entrepreneurship, skills and ability, hard work, team effort. Wonderful. Thank you so much. You can keep writing your answers, okay? But I think I've covered the picture of what all of us are trying to say, right? Now, here is what my point is. ध्यान से सुनिए और शांति से सुनिए. अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने जितनी भी चीजें लिखी है ना एज एन आंसर, या मैंने कुछ लोगों के आंसर पढ़े हैं, अगर इसको एक ऊपर से देखेंगे, बर्ड्स आई व्यू देखेंगे, तो धंधा डबल करने के लिए हमको पैसा लगता है. ये पैसा क्यों चाहिए? लोगों को हायर करने के लिए, एसओपी डेवलपमेंट के लिए, खुद को मोटिवेट करना है तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर को पैसा देके सुनने के लिए,
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग में आप लोग हो तो फिर एक्स्ट्रा मशीनरी के लिए, फिर जगह चाहिए आपको जो आप रेंट पे लोगे ताकि आप आपका मशीन वहां पे चला सको, सैलरीज देने के लिए पैसा चाहिए, यू नीड टैलेंट। कुछ लोग बोलेंगे स्ट्रेटेजी, तो या तो आपको किसी स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा या आप किसी बिजनेस कोच या कंसल्टेंट के पास जाओगे। सो ऑल ऑफ दिस इट लिटरली बॉइल्स डाउन टू मनी। मतलब अगर मेरे पास पैसा है तो मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ। प्लानिंग के लिए भी किशोर भाई टाइम लगेगा। सो या तो धंधा डबल करने के लिए पैसा लगता है या तो टाइम लगेगा, क्योंकि मैं किसी और से कराऊंगा या मैं खुद करूंगा। मनोज भाई, डिजिटलाइजेशन के लिए भी पैसा लगेगा, राइट? आप किसी को हायर करोगे या आप कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करोगे तो या तो पैसा लगने वाला है या तो टाइम लगने वाला है। आप इंटरनली करो या एक्सटर्नल करो। सेड अनदर वे, धंधा डबल करने के लिए आपने जितनी भी चीजें लिखी ये हम लोग सब कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि या तो हमारे पास पैसा नहीं या तो हमारे पास टाइम नहीं है। अभय संगोई भाई, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, इसके लिए एक मेंटल बैंडविड्थ लगती है और इसके लिए मुझे टाइम चाहिए। और क्योंकि मेरे पास इतना ही टाइम है मैं इतना ही कर पा रहा हूँ, और क्योंकि मेरे पास इतना ही पैसा है मैं इतना ही कर सकता हूँ। नाउ लेट्स से हम लोगों की लाइफ में कोई एक माई बाप आ गया। गौतम, गुड टू सी यू। वंडरफुल। जस्ट इमेजिन अगर कोई भाई साहब आ गए हमारे लाइफ में और उन्होंने बोला ये लो बेटा तुमको 10 करोड़ रुपया दिया, किशोर भाई स्पेंड इट द वे यू फील लाइक, जिधर मन करे वापरो, जैसे मन करे वापरो, सुखी रहो, आपको मुझे कोई ब्याज नहीं देना है, यू डोंट हैव टू गिव एनी इंटरेस्ट टू मी, पेएबल व्हेन एबल, जैसे गौतम बोलता है, रिटर्न टू मी द मनी व्हेन यू कैन। नहीं भी रिटर्न किया ना 5 7 10 साल के बाद तो कोई बात नहीं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तू तो मेरे बेटे जैसा है, ये तेरा ही समझ। हाउ मेनी ऑफ यू आर कन्विंस्ड कि अगर ऐसा कोई बंदा मुझे ये समय में इस तरह का पैसा देता है तो मैं कुछ ना कुछ तो वो पैसे का सदुपयोग करके धंधे को यहां से यहां लेके जाऊंगा? प्लीज टाइप पॉसिबल। Very good. I'm hearing some people saying not possible. I like that. We are going to cover with you people. Most of you are thinking like that, right? Mehul bhai, good to see you. Thank you so much. Ashit, lovely to see you. To some extent possible, Sunil ji. Very pragmatic answer. It's not necessary, Ravinder ji. I agree with you. अगर ऐसा पैसा मिल जाता है तो मैं ये पैसा इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ कर सकता हूं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इस तरह का पैसा अवेलेबल है। बाप दादा का पैसा अवेलेबल है, एंसेस्ट्रल वेल्थ अवेलेबल है, कम्युनिटी में जाके लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी या फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी मुझे पैसा मिल सकता है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह का पैसा उठा के मेरे धंधे में डालने की हिम्मत नहीं करता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे धंधे में एक लेवल ऑफ रिस्क है। ये पैसा इन्वेस्ट करने के बाद मैं श्योर नहीं हूं कि मैं उतना रिटर्न निकाल पाऊंगा। लाइफ थोड़ी रिस्की हो जाएगी, बैलेंस शीट थोड़ी रिस्की हो जाएगी, बिजनेस थोड़ा रिस्की हो जाएगा, और एक लेवल के बाद मुझे रिस्क लेना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा सुख चैन नींद सब बर्बाद हो जाता है, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। सेड अनदर वे, मैं पैसा डाल भी सकता हूं अगर कोई दे देगा, लेकिन उसके कारण जो रिस्क बढ़ता है, मेरी एक लेवल और एक हद तक रिस्क लेने की ताकत है, उसके ऊपर मुझे ठीक नहीं लगता है, उसके लिए मैं ये रास्ते से बचता हूं। नंबर 1। नंबर 2, टेक्निकली स्पीकिंग एंड थियोरेटिकली स्पीकिंग, मैं थियरी बोल रहा हूं। हम लोग 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं दिन में, और ये 8 से 10 घंटे जो हम लोग काम कर रहे हैं दिन में, इसमें हम लोग 2 3 4 5 6 8 लाख रुपया कमा लेते हैं। इफ वी थियोरेटिकली स्पीकिंग स्टार्ट इन्वेस्टिंग 14-15 आवर्स इन आवर बिजनेस, तो वो 2-3-4 लाख रुपए का 3-4 4.5 5 6 8 7 8 लाख कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ हो जाएगा हमारे धंधे में। बट वी आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट दिस एक्स्ट्रा टाइम इन आवर बिजनेस। क्यों? खास करके 30 की उम्र के बाद, शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स भी होते हैं। You want to do some community service, you belong to some Lions clubs, you want to do some activities for KCF, you have your religion to pursue, कुछ लोग BNI में होते हैं, आपको दूसरे काम करने होते हैं, you want to look out for your health, you want to have some spiritual and religious activities। तो मैं मेरा सारा टाइम काम में डाल दूं तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। बीवी बच्चे लाइफ में पैसा कमा भी लूंगा, लेकिन अगर ये पैसा एंजॉय नहीं कर सकता तो ये पैसे का करूंगा भी क्या? और अगर इस तरह से पागलों से अगर मैं धंधे में काम करने लगा तो एक दिन मैं बर्नआउट हो जाऊंगा, आई विल गेट स्ट्रेस्ड आउट, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे से ये नहीं हो पाएगा। इवन फॉर लैक ऑफ स्ट्रेटेजी and convincing the lenders and whatever you people are saying, either you will need a person for which you will need money, or you will need to do some thinking for which you will need some time। Said another way, हम सब लोग assume करते हैं
महावीर जी, you'll have to scroll left and right. हमारी तरफ से प्रेजेंटेशन की स्क्रीन परफेक्ट है सर, आपको आपके एंड में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे. विल यू प्लीज टेक केयर ऑफ दैट सर? थैंक यू सो मच. कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट आई वाज मेकिंग, 100 में से 90-95 लोग सोचते हैं कि मेरा धंधा डबल नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर धंधा डबल करना है तो ज्यादा पैसा लगेगा या तो ज्यादा टाइम लगेगा, और क्योंकि मेरे पास ये दोनों इतने ही अवेलेबल है, मैं इसके अंदर हाथ पैर मार के जितना हो सकता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसके बियॉन्ड मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद व्हाट आई हैव सेड? मतलब आप अननोइंगली, आप सबकॉन्शियसली, मन में शायद आप ऐसा सोचते हो कि मेरा धंधा लिटरली डबल नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है या मुझे टाइम कम पड़ रहा है. इफ यू अग्री, प्लीज टाइप अग्री. थैंक यू सो मच. अभी ध्यान से स्लाइड पढ़िए और ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है. हाउ डू यू रियली डबल योर बिजनेस? सम ऑफ यू मे नॉट बी एबल टू डबल योर बिजनेस क्योंकि आप ऑलरेडी 50 करोड़ में बैठे हो, तो 90 दिन में कोई 50 करोड़ का 100 करोड़ नहीं होने वाला है, ये हम भी समझते हैं. लेकिन कैन यू रियली थिंक ऑफ दिस एज डबलिंग द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस? मनन भाई, हमको हर साल 10-15% बढ़ने का आदत है. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू इंक्रीज योर रेट ऑफ ग्रोथ by 15, 20, 30%? आप आपके गट्स को पूछो, आप आपके पेट में पूछो. डोंट यू थिंक इट्स रियली पॉसिबल फॉर यू टू डबल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस, इफ नॉट literally doubling your business? How do you really double your business in the next 90 days without adding any stress and without taking any more risk compared to what you're doing right now? और मैं आपको 1 रुपए का खर्चा करने को बोलने वाला नहीं हूं. मैं विरुद्ध हूं नया एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि जब तक हमारी एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती नहीं है, हम लोग कितना भी पैसा डालेंगे, वी विल कंटिन्यू टू रिमेन अनप्रोडक्टिव एंड इनएफिशिएंट, एंड दैट इज द मदर ऑफ ऑल कंसर्न्स इन टुडेज वर्ल्ड. वी विल स्पीक मच मोर अबाउट इट. 7 घंटे है. I have just got you people started. So more today and for the next 7 days is you forming some very simple, very basic $1,000,000 habits. You can accomplish any goal that you want in any area of your life that you really wish to take up. What if I told you that over 85% of the people who have worked with me in the past, they have literally doubled their business or doubled the rate of growth of their business using the framework that I'm going to share with you people over today, tomorrow, and day after. Some of you have been students of mine. You're probably doing this as a recap for yourself because in the comforts of your home, you've done this. How many of you would agree with me that you've done it? I at least know 5-7 people who've done work with me before. Have you been able to achieve this? Like, you've really doubled your business without adding any stress and risk that you would have otherwise taken in your life? So Girish Maru is saying yes. Gautam is saying yes. Vinod ji, you attended me before. Thank you so much, sir. So my point is, what kind of habits which once I form, I can double my business or accomplish any goal that I set in my life over and over, over and over, over and over, over and over again as a habit and not a one-time phenomena. Would you be interested in something of this sort? If yes, please type interested. If you're not interested, Pranit, you're wasting your time. Got it. Thank you so much. This is exactly what I want to cover over the next 7 days with you people, okay? What makes this different? ये कोई मेरी पर्सनल आइडिया नहीं है, ये कोई एक बंदे की मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये किसी की फिलॉसफी नहीं है. I am actually going to expose you and show you and walk you through a system, a method, a framework, a structure, which when applied 15, 20, 25%, you will produce tangible results in a time-bound manner on the foundation of habits. So I have trained and coached a little over 15,000 people so far. 29 की उम्र में मैंने कुछ 13,500 लोगों को ट्रेन किया था, और बाद में लाइफ में एक मोड़ आया जहाँ पे आई डिसाइडेड एंड आई स्वोर ऑन माई सेल्फ कि मेरे को ट्रेनिंग वेनिंग नहीं करने का है, मुझे खाली हार्डकोर इम्प्लीमेंटेशन में करना है. सो इन द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दिस इज ऑल दैट वी कवर्ड. हमने लोगों को जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सीखे, IIMs में सीखे, हमने लोगों को वो नॉलेज दिया. वी डिड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्क विद पीपल. वी ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क, जहाँ पे आपने खुद का नजरिया बदला हुआ देखा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है. हमने लोगों को बोला सर सुधर जाओ, आगे रास्ता कठिन है, and stuff like that. So we elevated people's awareness, we made them realize their gaps, and we kind of allowed them to look at their business and their life in a completely new context. We also gave people tools to increase their personal and team performance. And we showed people what habits will not work in the 21st century. Now, let me explain to you what I mean by this.
the speed, the complexity, and the volume of work that you and I are doing in my business, the speed, the complexity, and the volume of work that you and I are doing in our business, isn't it much more right now compared to what we used to do 5 years ago? आने वाले 5 साल में the speed, the complexity, and the volume of work that you and I will be handling, it will be much more compared to what we are handling right now. But if you carefully see, we developed our habits when we were very, very young. हम सब लोगों ने प्रोडक्टिविटी रिलेटेड काम निकालने की आदतें, रिजल्ट प्रोड्यूस करने की आदतें डेवलप की 18 और 23 की उम्र के बीच में. इन आर इंटर्नशिप्स, इन आर आर्टिकलशिप्स, पापा की दुकान के गले में बैठ के, समर जॉब्स करके, इंटर्नशिप्स करके 18 से 23 की उम्र के बीच में हमने पहली बार लाइफ में थोड़ा बहुत सीरियस और मेन स्ट्रीम काम किया. तो याद करो वो पहले दिन, पहली नौकरी, पहली बार आपने कहीं पे इंटर्नशिप किया या आर्टिकलशिप किया, या आप मामा चाचा पापा की दुकान में जाके बैठते थे और उनका हाथ बढ़ाते थे ड्यूरिंग योर समर जॉब्स और व्हाटएवर. आपने काम निकालने की आदतें तब डाली थी. आपका एक ही पॉइंट था, आई वांट टू सी दैट आई एम इंपॉर्टेंट, आई वांट टू प्रूव कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, आई वांट टू प्रूव कि मेरा भी कोई वजूद है. यू रियली वांटेड टू प्रूव टू योरसेल्फ दैट यू नो यू कैन डू समथिंग, एंड आपका पूरा फोकस वहीं पे था. सो आपने काम निकालने की, रिजल्ट प्रोड्यूस करने की आदतें डाली in order to cope up with the person who gave you the work at that time. You wanted to impress that person. You developed habits around your work to make sure that you remain important and relevant in the environment and the circumstances that existed at that time in your life. Now, here is my question. Are those people, the environment and the circumstances the same today? Yes or no? Okay. Wonderful. Here is my question. 2020 में ये सारी आदतें हम लोगों ने बनाई थी 92, 93, 2000, 2005, 2012, 2015. If these people, environment and circumstances are not the same, are my habits the same today? A few of my habits have changed, but most of my habits are still the same. And some of the habits which have been changed, they change because of 3 factors in our life. First factor is called नरेंद्र मोदी. उसने बोला डिमोनेटाइजेशन, तो आपको आपके धंधा करने का स्टाइल बदलना पड़ा. The second factor which came in your life probably before or after Narendra Modi, for most of you before Narendra Modi, is something called a child. बच्चा आया तो हम लोगों ने हमारी आदतें बदली. We started doing a lot of things at home which we were not doing before. We became a little more compassionate towards our wife. We started extending help in the family matters and stuff like that. जिंदगी में थोड़ा ठहराव आया और आपकी लाइफ में सबसे बड़ा भूचाल आया था और आपने आदतें बदली थी जब आपने शादी की. इफ यू ध्यान से देखोगे, आप लोगों ने आदतें बदली है, लगभग जितनी भी आदतें बदली है, इट विल मोर और लेस कम ओवर हियर. माय पॉइंट इज वेरी सिंपल. मेरे और आपके आजू बाजू की दुनिया बदल चुकी है, लेकिन हम लोग बदले नहीं है. Our habits are not consistent to the way the world is moving in the 21st century, and unless we work hard on changing over time, we will become dinosaurs in our own business. I am not kidding. One study and one report is showing that by 2040, 95% of businesses would really shift to online. हम सब लोग Zoom नाम का शब्द जानते नहीं थे 1-1.5-2 महीने पहले, और आज Zoom has become the necessity of everybody, and in everything that we are doing हमको Zoom पे करना है. हमको जक मार के टेक्नोलॉजी पे आना पड़ा क्योंकि हम सब लोग घर पे अटके हुए. So we told people till the time you don't change your habits around work, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है. और जब तक आप आपकी आदतें नहीं बदलोगे, आप इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव हो, आपको जितने भी ऊपर ऊपर के सवाल पूछो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मैं और आप बहुत छोटे हैं. कोई भी सेक्टर हो, 1000 करोड़ की तो कम से कम इंडस्ट्री होगी. हमारा टर्नओवर 10 करोड़ से 20 करोड़ हो गया ना, तो हमको समझ में नहीं आता मैनेज कैसे करेंगे. तो लेट अस नॉट वरी अबाउट माइक्रो फैक्टर्स, इसका कोई मतलब नहीं है. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या? हाउ डू यू डिफाइन ह्यूमन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी? मैं मशीन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ह्यूमन प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ. Said another way and in a simpler way, Mitesh Sejpal की उम्र, can you all type your age if it's okay? Can you please tell me what your age is, because I'm going to ask you people a question. If it's okay to type your age, please type your age.
Wonderful. So most of you are in the bracket of average is about 35 to 40. तो एक 35 साल का गौतम आज है और वो 90 साल का होगा. 90 साल का जय ठक्कर 23 साल के जय ठक्कर को बोलेगा कि बेटा बता तूने लाइफ में क्या उखाड़ा. तो मेजर कैसे करोगे? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आपकी काम निकालने की क्षमता बढ़ी, आपकी रिजल्ट प्रोड्यूस करने की क्षमता बढ़ी. आप मेजर कैसे करोगे? जतिन भाई 17, you will turn 80 90 one day and you are 47 right now. पीछे देखोगे 90 साल का जतिन 17 अगर 47 साल के जतिन 17 को पूछेगा कि बेटा तूने ये जो भी 33 साल निकाले तूने इसमें क्या उखाड़ा, तो जतिन 17 मेजर कैसे करेगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी. Galaxy on next, can you please change your name so that I can call you more respectfully from your name. मैं वापस सवाल दोहराता हूँ. एक 90 साल का आदमी एक 40 साल के 50 साल के 30 साल के आदमी को पूछेगा कि बेटा तेरी तूने क्या उखाड़ा लाइफ में, आप मेजर कैसे करोगे? वेल्थ, कितना पैसा कमाया, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, मैंने कितने एसेट्स बनाए, मैंने कितने मंदिर बनवाए, मैंने कितना डोनेशन किया, मैंने समाज को कितना पैसा रिटर्न किया. मेरे रिटेल चेन ऑफ स्टोर्स है, जब मैंने चालू किया था एक छेड़ा ड्राई फ्रूट्स था, अभी 200 छेड़ा ड्राई फ्रूट्स है. स्टफ लाइक दैट, राइट? क्रूडेस्ट वे फॉर मेजरिंग योर प्रोडक्टिविटी is the money that you make. So हम लोग भी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन को क्लैरिफाई कर लेते हैं और हम लोग इसके बाहर नहीं जाने वाले. ओके, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट. ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी यही होता है, सिस्टम्स प्रोसेसेस के लिए भी यही होता है, मशीन्स के लिए भी यही होता है. प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. अब ह्यूमन बींग्स के पर्सपेक्टिव से प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. जय अनफॉर्चुनेटली ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन ना बड़ा अजीब होता है. जब घर पे आते हैं बीवी डांटती नहीं है, हम लोग बाहर कुछ अच्छा उखाड़ के आए तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन अच्छा होता है, हम लोग सबसे बड़ा तीर मारेंगे. और घर पे जब हम लोग अंदर आते हैं और बीवी बोलती है नहीं चुपचाप बैठ जा ये काम कर ले, तो अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन चूर हो जाता है. वी नीड समथिंग मोर डायनामिक टू मेजर आवरसेल्व्स. Productivity is equal to output divided by input. Productivity is equal to, for human beings, the results that I produced, the goals that I achieved, the passion that I fulfilled, the hobbies that I executed, stuff like that. Whatever your dreams, desires, ambitions, passions, goals and hobbies, if you are accomplishing that, it means you are producing the result that you want. ये रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए कुछ इनपुट लगते हैं. तो एज फार एज इनपुट्स आर कंसर्न, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी में इनपुट्स कौन से होते हैं? Please tell me what are the inputs which are required for you to produce the output called whatever results or money you want to make. What are some of the inputs? Guys, bear with me for another 8-10 minutes. I am taking you deep dive into my subject. Okay, labor, capital, knowledge, experience, time, dedication, money, strategy, effort, experience, skills, focus, efforts. Human productivity में what are the elements involved? Perfect, dedication, determination. Okay, wonderful. You keep writing your answers. Okay, I'm just scanning through your answers and reading it loud because some of you can't see other people's answers. Very good. ध्यान से देखोगे ना तो पैसा is actually not technically an input required for you to produce the outcome, क्योंकि ये पैसा जो है या तो आपका कमाया हुआ है पास्ट में, या तो बाप दादा का कमाया हुआ है पास्ट में, या तो बैंक से बोरो किया है, या तो किसी इन्वेस्टर से आपने लिया है. So technically speaking, this money also which you are referring to as an input, ये किसी और के टाइम और एफर्ट का रिजल्ट है. Human productivity and efficiency में money is not an input which really matters because this money is a byproduct of somebody else's time and effort of the past. In terms of human productivity and efficiency, everything you people have written now, it boils down to how much time am I spending in producing this outcome or this result, and how much effort me or my team or the people that I have outsourced in my life, how much effort are these people putting in. Said another way, productivity is equal to output divided by input. Output में आएंगे the results, which is the dreams, desires, passions, goals, hobbies, whatever you people call it. मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ये बैंक बैलेंस चाहिए, इतनी दुकानें, whatever. This is the result. और इसको प्रोड्यूस करने के लिए मैंने कितना टाइम डाला, और मैंने और मेरी टीम ने या मेरे लोगों ने कितना एफर्ट डाला. जितना कम टाइम और जितना कम एफर्ट डाला टू प्रोड्यूस दैट रिजल्ट, उतना ज्यादा मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ा. Just remember this definition. You want, please write it down somewhere. Human productivity is equal to results divided by time into effort. Lesser the time, lesser the effort. Same result or more effort. I'll come to that, Himan bhai. We have 7 days, so you will begin to familiarize yourself with a lot of these things. Human productivity is equal to results divided by time into effort.
the lesser the time and the effort, the same result, the more my productivity. The lesser the time, the lesser the effort, the more the result. I have increased my productivity exponentially. So we showed people what habits will not work in the 21st century. और लोगों ने बोला मन सब बात बराबर के मैंने आदतें बदली नहीं है, मेरी आदतें पुरानी है, मैं डायनासोर बन रहा हूँ, therefore there is so much stress in my life, there is so much of no, there is not much of ease and grace in my life, there is always much more work to do and much less time available, कितना भी करो खत्म ही नहीं पड़ता, पूरा ही नहीं पड़ता, stuff like that. ये सब बोला तो सही, लेकिन इसका रास्ता तो दे. तो रास्ते भी हमने लोगों को दिए, हमने लोगों को प्रोडक्टिविटी के शास्त्र पढ़ाए. We taught people laws of productivity. Laws of productivity work like law of gravity. Gravity किस तरह से काम करती है? Gravity इस तरह से काम करती है, आप कोई भी चीज पर उठो वो नीचे आती है. Whatever goes up comes down. That's the way productivity works for everybody. Fair enough? So if this is the way laws of gravity work, 18वीं सदी में भी laws of gravity इसी तरह से काम करते थे. If you agree कि 18वीं सदी में भी gravity ऐसे ही काम करती थी कि जो ऊपर उछालो वो नीचे ही आता है, और 24वीं सदी में भी जो ऊपर उछालोगे वो नीचे ही आएगा. If you agree with it, just type A so that I know you're still with me on the chat. Got it. So you people understand how gravity works. और हम लोग कोई बकवास नहीं करते, हम लोग कभी इसको चैलेंज नहीं करते. Whether you believe in it or not, whether you accept it or not, whether you agree with it or not, whether you understand it or not, आपकी श्रद्धा है या नहीं है, आपका भगवान इसमें बोलता है कि नहीं बोलता है, आपका धर्म इसके साथ अग्री करता है डिसअग्री करता है, आप ग्रेविटी के साथ कोई पंगे नहीं लेते. फैक्ट ऑफ द मैटर इज बारिश में बाहर जाओगे बिना छाते के तो आप पर्सनली गीले होने वाले हो, लेकिन ग्रेविटी का आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है. दिस इज द वे इट वर्क्स फॉर एवरीबॉडी, फेयर एंड स्क्वायर. हम लोग चैलेंज भी नहीं करते ये नोशन को कभी भी. सिमिलरली देर आर, बाय द वे, अगर ग्रेविटी को चैलेंज करोगे तो कॉन्सिक्वेंस होगा. 10 माले की बिल्डिंग से कूद के देख लो, आप नीचे ही जाओगे. आपकी कोई भी इच्छा हो, आप मानो या ना मानो, अग्री करो डिसअग्री करो, विश्वास रखो ना रखो, बिलीव करो या ना करो, बिकॉज दैट्स हाउ लॉज आर. दे आर टाइम टेस्टेड. ये सदियों से, अनंत काल से इसी तरह से काम करते हैं. सिमिलरली देर आर सम लॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी इन लाइफ. किसी ने आपको ये लॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी बताए, किसी ने आपको लॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी सिखाए. अगर किसी ने आपको ये लॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी बताए नहीं है, सिखाए नहीं है, तो आप इनको फॉलो कैसे करोगे? अगर आपने ड्राइविंग सीखा ही नहीं है और आपको समझ में ही नहीं आता है कि ट्रैफिक सिग्नल क्या चीज होती है और लाल बत्ती का मतलब होता है रुकना, अगर आपने ये सीखा ही नहीं है, आप गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी ठुक जाएगी, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और आप मर भी सकते हो. सेड अनदर वे, जितने भी लॉज ऑफ ग्रेविटी है, जितने भी लॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी है, अगर आपने उनका जाने या अनजाने में उल्लंघन किया, then you will have to pay a price for it. अभी किसी ने आपको ये लॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी बताए नहीं, दिखाए नहीं, सिखाए नहीं, कोई स्कूल नहीं सिखा रही है, कोई मैनेजमेंट कॉलेजेस नहीं सिखा रहे, कोई बिजनेस कोचेस, कंसल्टेंट्स, एडवाइजर्स इंक्लूडिंग द मैकेंजीज ऑफ द वर्ल्ड सिखा नहीं रहे हैं, तो आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे? हमने लोगों को ये लॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी बताए, दिखाए और सिखाए, और हमने लोगों को बोला जब तक आपकी आदतें ये लॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई नहीं है, टिल द टाइम देयर इज नॉट अ नेचुरल अलाइनमेंट with these laws of productivity, whatever habits you have, मैं आपको कितने भी टूल्स दे दूं, मैं आपको कितना भी ज्ञान दे दूं, मैं आपको कितना भी अवेयरनेस दे दूं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली नहीं है. कोरोना और नो कोरोना, your productivity will suffer. Now, after doing all of this right and wrong for the 10 years, just bear with me for another 5 minutes, and then the premise on which I want to do the next 7 days is all set with you, and we will get into straight into actions. After doing all of this right and wrong for the first 10 years of my life, what I discovered is this is the business of education. हमने knowledge दी, awareness दी, tools दिए, habits बताए, लोगों को laws of productivity भी बताए, दिखाए, सिखाए, जो आप गूगल करोगे आपको नहीं मिलेंगे. It is easy to forget what we learn, yes or no? हम जो सीखते हैं वो हम भूल जाते हैं. How many training programs, workshops or seminars you people have attended before mine so far in your life? Just type the number 1, 2, 10, 15, 20, 80, whatever. Please type the number of training programs or seminars or workshops you would have done so far before you came to my workshop. Perfect. बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला और हम सब भूल गए. इसमें अच्छा बुरा सही गलत राइट रॉन्ग कुछ नहीं है. नेक्स्ट वन, इट इज टफ टू अप्लाई द लर्निंग्स ना. नई चीजें सीखना तो बड़ा आसान है, बट हैव आई बिकम अ न्यू ह्यूमन बीइंग?
Yesterday, I listened to a very learned man last evening, and he gave some beautiful inputs. You should recapitalize. करते कैसे है? You will have to adapt to the circumstances. ये होता क्या है? मैं ये लर्निंग सीखना चाहता हूँ, मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूंगा? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें मुझे बताइए, दिखाइए, सिखाइए. बहुत सारे लोगों ने फ्री में भी किया हुआ है, जिसका नाम पापा होता है टिपिकली अपनी लाइफ में. पर मैं सीख तो नहीं रहा हूँ. आज भी आप लोग ये वर्कशॉप और ये सेमिनार में आए हो, चलो मनन भाई कुछ नया बताएंगे, नया सिखाएंगे. सम ऑफ यू आर हियर बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी, सम ऑफ यू आर हियर बिकॉज ऑफ योर शेयर लव फॉर मी, सम ऑफ यू आर हियर बिकॉज यू वर्ड फ्रॉम समबडी इज अ गुड स्पीकर, सम ऑफ यू आर फोर्स्ड टू बी हियर कि तू जाके देख तो सही करने का क्या है, सम ऑफ यू आर हियर टू इम्प्रेस योर बॉसेस कि इनको बुरा लग जाएगा मैं अटेंड नहीं करूंगा. वॉट एवर मे बी अ रीजन. हम हमारे बच्चों को स्कूलों में भेजते क्यों है, मैनेजमेंट एजुकेशन क्यों देते हैं हमारे बच्चों को? ताकि वो नए इंसान बने, so that they have some values, they have some ethics and stuff like that, which is exactly what my point is. Shashank ji, it is difficult to implement. New questions keep coming up all the time. मैं नई चीजें तो सीख रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नया इंसान बन गया हूँ. A lot of us have done a lot of self transformation programs and workshops over here on this platform and so many other platforms. वो किधर है? मैं और आप सब लोग हमारी दुनिया में मिनी बाबास बन गए हैं, और मेरी जिंदगी उतनी ही नहीं सुधरी है जितनी मुझे चाहिए. इसमें अच्छा बुरा सही गलत नहीं है, और इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है. मैं आपको एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन इन द वर्ल्ड परहैप्स का प्रॉब्लम समझा रहा हूँ कि हमारी जिंदगी अटकी हुई क्यों है. एडवाइस तो सब लोग दे रहे हैं, लेकिन किसको पड़ी है कि मैं एक्चुअली इसका कुछ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. इतने सैकड़ों वर्कशॉप्स और सेमिनार्स किए, कौन सा टीचर, कौन सा कोच, कौन सा कंसल्टेंट, कौन सा एडवाइजर, कौन सा मेंटर, कौन सा गुरु वापस आके आपको पूछा बेटा मैंने तेरे को ये सिखाया, तू इसका कर क्या रहा है? कैन आई हैंडल यू एंड कैन आई टेक यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी? सभी लोग बोले जा रहे हैं आई एम देयर विथ यू व्हेनेवर यू नीड, लेकिन कोई मेरे को आके एक्सक्यूज माय लैंग्वेज घंटा पूछ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ उसका. बॉस पूछता है ना कभी कभी. खुशबू, गुड पॉइंट. एडवाइस सब लोग दे रहे हैं. बाय द वे दिस इंक्लूड्स आवर पेरेंट्स. बाय द वे यू गाइस आर लकी इफ यू आर गेटिंग एडवाइस, क्योंकि हम लोग रास्ते चलते बंदे को एडवाइस नहीं देते. लेकिन किसको पड़ी है कि मैं ये एडवाइस का कुछ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? द ओनर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज ऑन यू. इट ऑलवेज हैज बीन. बाय द वे वन मोर पॉइंट, ये एडवाइस का भी मैटर छोड़ दो. बाय द वे गलती से किसी को पूछ लो, अभी Q&A में ना दुनिया भर के सवाल आएंगे. अगर मैं बोलूंगा ना सवाल पूछो, आप लोग इतने सारे सवाल पूछोगे, मैं आपको बढ़िया जवाब दूंगा, आप ताली बज जाओगे, आप बोलोगे मनन भाई थैंक यू सो मच, आपने तो मेरी आंखें खोल दी. लेकिन भाई साहब उसके बाद आप खुली आंखों से सोने वाले हो, उसका फायदा क्या है? अगर मैं करूंगा नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने क्या बोला और आपने क्या सुना, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सम ऑफ अस गेट फ्रस्ट्रेटेड ना विथ आवर चिल्ड्रन, तू मेरी सुनता नहीं है. By the way, our parents had the same problem with us. I'm just letting you know. And people between the age of 30 and 40, you guys are in no man's land. But this is the way life will be. पहले पूरी जिंदगी सुना कि बाप बोलता है सुनता नहीं है, और बाद में अभी मैं बोलता हूँ मेरे बच्चे को और आजकल के बच्चे सुनते नहीं है. तो ये सदियों का प्रॉब्लम चलता रहा है. सब लोग एडवाइस दे रहे, किसी को पड़ी नहीं है मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. नाउ इवन अ मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेरी सीरियसली. ओके, आपकी प्रोडक्टिविटी इसके ऊपर निर्भर है, और मैं टाइम वेस्ट के बिल्कुल विरोध हूँ. टेल मी 5 things which if you start doing from today, लॉकडाउन के बाद आपका धंधा सुधरेगा, आप डूब नहीं जाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी घरवाली आपसे खुश होगी, जिसकी शादी नहीं हुई, your spouse will be happy with you if you don't have a spouse. Tell me 4-5 things which if you start doing from today, from now, once the lockdown opens, you will do much better in life. आप डूबोगे नहीं and you will really grow in your life. Online presence, marketing, product, customer contacts, रेगुलर रिव्यू ऑफ माय वर्क. इफ आई इंप्रूव माय टाइम मैनेजमेंट, मेरी लाइफ सुधर जाएगी. फिर इसका कोई कोविड-19 से मतलब नहीं है. वेरी गुड एक्सरसाइज एंड हेल्थ, ऑनलाइन सेल्स चालू कर दूं, गुड कम्युनिकेशन विद स्टाफ, टाइम मैनेजमेंट, यूज ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, डेडिकेशन, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ माय टीम. मेरा फोकस सुधर जाए, डिसिप्लिन सुधर जाए, मैं नए स्किल सीख जाऊं, मैं टेक्नोलॉजी के साथ मेरा धंधा करूं. टेल मी 5 things which if you start doing from today, your life will really improve. Assume कर लो ना कि कल लॉकडाउन खुल गया है. मेडिटेशन, लर्निंग स्किल्स एंड एक्सरसाइज, व्हाट एल्स? मोर फोकस, वर्क हार्ड. मैं कौन सी 5-6 चीजें करना चालू कर दूं, मेरी लाइफ सुधर जाएगी, मेरा टर्नओवर बढ़ेगा, मेरा धंधा सुधरेगा. किसी ने लिखा ही नहीं मोर सेल्स. आई एम काइंड ऑफ सरप्राइज. धंधा डबल करने के लिए सबसे पहले तो बेचना पड़ेगा. मीट मोर पीपल. हम में से कुछ लोग सदियों से कस्टमर्स को मिले ही नहीं है. वेरी गुड.
whatever advice is this guy is giving, it should be applied. Chetan bhai, good answer. Focus on health, contacting more customers, motivate my employees, talk to more people to sell to them. Rajesh, thank you so much. He's a police officer and he's made time for me. Rajesh, thank you so much. It's an honor to have you over here. I hope you're taking enough rest, because I've heard you guys are doing 18 hours of duty trying to keep us safe. Thank you so much. Vishal, online sales, exercise, meeting more customers. Thank you, Rajesh. It's really an honor for me to have you here. It really means a lot to me. He is also a student of mine of the past. Wonderful. अभी रुक जाओ अभी रुको. अभी एक और आसान सवाल पूछता हूँ. Ready for an even simpler answer? कौन सी 5 चीजें आज के बाद बंद कर दूंगा करना? If I just stop doing this, और इसके रिप्लेसमेंट में मैं कुछ नया नहीं करूंगा ना, तो भी अपने आप मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मेरी रिजल्ट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, मेरा टाइम पास कम होगा लाइफ में, बीवी खुश होगी, मेरा धंधा सुधर जाएगा, मेरे एम्प्लॉइज मेरे से खुश रहेंगे. व्हाट आर द 5 थिंग्स इफ आई जस्ट स्टॉप डूइंग, एंड इफ आई डोंट डू एनीथिंग एल्स, तो भी मेरी लाइफ सुधर जाएगी. स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, लेजीनेस, व्हाट्सएप, टिकटॉक, वॉचिंग टीवी, लेजीनेस, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, स्टॉप यूजिंग फेसबुक. परफेक्ट. हेजिटेशन छोड़ दो. स्टॉप बीइंग अच्छे से करूंगा. वेरी गुड. गौतम, अभी सुधरा नहीं तू? सोशल मीडिया, वेस्टिंग माय टाइम. परफेक्ट. अब एक सिंपल सवाल पूछूं आप सब लोगों को, कितने साल से आपको ये सब मालूम है? Since how many years you guys have been knowing the answers that you guys are giving? Rest this is silly. I am setting you up for something very massive. If you write your answers, it will make a big difference. देखो, आप मेरे वर्कशॉप को टीवी के रूप में देख सकते हो. मतलब टीवी के सामने आदमी पड़ा होता है, तो बोल जो बोलना है बोल, मैं सुन रहा हूँ, बीच में चैनल चेंज करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. यू कैन बी अ स्पेक्टेटर इन दिस वर्कशॉप और यू कैन रियली पार्टिसिपेट. बाय द वे भाई साहब, टाइम तो आपका खुद का है ना, आपका टाइम तो वेस्ट ही हो रहा है. प्लीज पार्टिसिपेट. दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट वैल्यू. मैं आपको जुबान देता हूँ, 7 दिन में आपका फाउंडेशन हिला के रख दूंगा, एंड यू विल बी रेडी फॉर अ रियल वर्ल्ड, एंड यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ दैट आई इन्वेस्टेड माय टाइम विद मी. माय रिक्वेस्ट, यू पार्टिसिपेट व्हेन आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस. कितने टाइम से मुझे ये सारी चीजें मालूम है? कितने लोगों को मालूम है कि आगे जाके खर्चे कम करने पड़ेंगे, कैश हाथ में रखना पड़ेगा, नए इनोवेटिव तरीके से बेचना पड़ेगा, ऑफिस के बाहर सैनिटाइजर लगाना पड़ेगा, थर्मोमीटर लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट आएगी और ठोक देगी अगर नहीं किया तो. कितने लोगों को मालूम है कि कस्टमर्स को डिस्काउंट देना पड़ेगा? कितने लोगों को मालूम है कुछ वाउचर्स देने पड़ेंगे ताकि अपनी दुकान में वापस लोग आए और उनको संभालना पड़ेगा? हमको ये सारी चीजें 5000 साल से मालूम है. क्या उखाड़ लिया हम लोगों ने? यू ऑलरेडी नो व्हाट यू नीड टू डू टू मेक योर लाइफ बेटर. मैं आपको और ज्ञान दूं और भाषण दूं, आपको क्या फर्क पड़ता है? 29 की उम्र में 13,500 लोगों को ट्रेन और कोच करके बैठा था इन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी वर्कशॉप्स. एक चीज समझ में आ गई थी, हम ट्रेनर लोग ना, हम लोग खुद को पता नहीं क्या समझते हैं कभी कभी. वी विल मेक अ डिफरेंस, हम लोगों की दुनिया बदल देंगे, ये वो पता नहीं क्या क्या. ऑफ कोर्स हम सबके मन में होता है दैट वी वांट टू मेक अ डिफरेंस एंड वी वांट टू कंट्रीब्यूट इन पीपल्स लाइव्स, बट समटाइम्स ना हम लोग थोड़ा ज्यादा ही सोच लेते हैं खुद के बारे में. मेरे को 29 की उम्र में एक चीज समझ में आ गई. बाय द वे, हमेशा से लाइफ में मेरे से 15, 20, 30, 40, 50 साल के ऊपर के लोगों को ही सिखाया है 18 की उम्र से. व्हाट आई रियलाइज दिस, हमको जो बोलना है हम बोले, लोग वो ही करते जो लोगों को करना है. एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, हमने कभी हमारे पप्पा की नहीं सुनी. मनन, हम तुम्हारा क्या सुनेंगे? हम वो ही करेंगे जो हमको करना है. तुमको जो बोलना है बोलो. एग्जैक्टली. माई एंटायर डिबेट इज that it is the implementation which is the problem. अभी भी मैं आपको और नॉलेज दे दूंगा, ज्ञान दे दूंगा, आप लोग ताली बजाओगे, आपको मजा आएगा, आप बोलोगे सही बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है. ये सब एंटरटेनमेंट वैल्यू आपकी लाइफ किधर बदली? लाइफ खाली एक ही चीज से बदलती है और उसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन, एंड द ओनस इज ऑन यू. इसके लिए हमको लगता है मेरे एजुकेशन में, मेरे सेल्फ डेवलपमेंट में कुछ कमी है, इट इज नॉट सस्टेनेबल. तो चलो एक और बाबा के पास जाते हैं, चलो एक और मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पास जाते हैं, चलो एक और गुरु ट्राई करते हैं, चलो धर्म परिवर्तन ट्राई करके देखते हैं, चलो श्री श्री के पास जाते हैं, चलो रामदेव के पास जाते हैं, चलो शिवानी के पास जाते हैं, चलो ये बाबा के पास जाते हैं, चलो यूट्यूब देखते हैं, चलो टेड टॉक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट कुछ नहीं हुआ, दूसरा मैनेजमेंट कंसल्टेंट पकड़ते, मेरे में ही कुछ कमी होगी, नहीं आई नीड टू डू सम मोर इंट्रोस्पेक्शन. चलो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अभी प्रोग्राम दे रहा है तो एक डिग्री ले लेता हूँ. मनन, आईआईएम से ये कोर्स करना वर्थ है क्या? स्टफ लाइक दैट. क्यों? क्योंकि हमको लगता है हमारे में कुछ कमी है. भाई साहब, आप में कुछ कमी नहीं है, कुछ टूटा हुआ नहीं है जो आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हो. प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन है, नॉलेज है ही नहीं.
फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आज के बाद एक नए रुपए का नॉलेज, एक नए रुपए का अवेयरनेस, एक नए रुपए के टूल्स आपको नहीं मिले। आपको जितना पता है, जितना आता है, जितना मालूम है, खाली उतना ढंग से कर लिया ना, तो भी आपका धंधा यहां से यहां आराम से जा सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? प्लीज टाइप अग्री। एक नए रुपए का आज के बाद नॉलेज, अवेयरनेस, टूल्स कुछ नहीं चाहिए मेरे को। एक नई किताब नहीं पढ़नी है, एक नया वेबिनार नहीं करना है, एक नया वर्कशॉप नहीं करना है, एक नए बाबा प्रकाशो नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जितना पता है, आता है, मालूम है, खाली इतना इंप्लीमेंट कर दिया तो भी मेरी जिंदगी यहां से यहां तो पक्का चली जाएगी। और मेरे को किसी को मालूम नहीं है, और मुझे मेरे पेट में मालूम है, I know in my guts that I can be much more successful than what I am right now. मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। Exactly my point. Knowledge makes no difference. आपका प्रॉब्लम नॉलेज है ही नहीं, आपका प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन है भाई साहब। और कोई टीचर, कोई गुरु, कोई बाबा नहीं आ रहा है लाइफ में, कोई कंसल्टेंट, कोई मैकेंजी, कोई अर्नस्ट एंड यंग, कोई बेन एंड कंपनी आपको वापस आके पूछ नहीं रहा है, आपको ये स्ट्रेटेजी दी, आपने किया क्या? चलो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ पकड़ के तुमको कराता हूं। द ओनर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज ऑन यू। इसके लिए मैंने ये गली छोड़ दी। क्यों? पता है लोगों की तकलीफ है, लोग कर नहीं पा रहे, तो वो करो ना भाई साहब, और प्रॉब्लम है ही नहीं। तो एक चीज तो साबित होती है, प्रोडक्टिविटी की दुनिया में रिजल्ट डिवाइड बाय टाइम इनटू एफर्ट, इसमें मुझे कितना आता है ये फीचर ही नहीं कर रहा है। इसमें मैं कितना होशियार हूं, मेरे इरादे कितने अच्छे हैं, मैं कितना सच्चा आदमी हूं, मेरी इंटेग्रिटी कितनी हाई है, मैं कपटी हूं कि नहीं, ये सारी चीजें आती नहीं है प्रोडक्टिविटी की दुनिया में। प्रोडक्टिविटी की दुनिया में एक्शन का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। अच्छा लगे या बुरा, सही लगे या गलत, मानो या ना मानो, एक्सेप्ट करो या ना करो, 10 माले की बिल्डिंग से कूदोगे तो नीचे गिरोगे। अगर ये शास्त्र है जो आपको समझ में आ रहा है, तो फिर प्रोडक्टिविटी के भी कुछ शास्त्र है। आप समझो ना समझो, आपके ऊपर इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है और कुछ पर्सनल नहीं है। To wrap up, my productivity is a function of my habits, and till the time you really don't reinvent yourself to change your habits around productivity and efficiency, COVID-19 हो या ना हो, आप आगे बढ़ने वाले नहीं हो। डिमोनेटाइजेशन हो या ना हो, आप आगे बढ़ने वाले नहीं हो। आपकी प्रोडक्टिविटी आपका पर्सनल निजी प्रॉब्लम है। इट इज लाइक द स्किन, इट इज लाइक द स्किन, इट इज लाइक द स्किन दैट यू आर हैविंग इन योर हैंड। बीवी को देनी है ना, नहीं दे सकते हो। इट लिव्स विथ यू फॉर एवर। Your productivity is a function of your habits. Only you got to do something about it. This me thinking, 29 साल, 13,500 लोग उतने सक्सेसफुल क्यों नहीं है जितना उनको होना चाहिए? अगर मैं टॉप क्लास एजुकेशन दे रहा हूं, अगर मैं दुनिया का सबसे अच्छा आलीशान वर्कशॉप वगैरह करता हूं, अगर मेरा मन इतना साफ सुथरा है, अगर मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा है, ऐसा क्यों है कि स्कूल में मेरे साथ अंकित पारेख नाम का एक लड़का था, दर्शन पारेख नाम का एक लड़का था, और उसको 45% आते थे, और मैं तो सबसे ओबीडियंट स्टूडेंट था, अच्छा स्टूडेंट था, फर्स्ट बेंच पे बैठता था, टीचर को गुरु का दर्जा देता था, टीचर को कभी गलत नजर से देखा नहीं, टीचर को हमेशा गुरु और माँ बाप का दर्जा दिया, माँ बाप की बात सुनते थे, पागलों की तरह पढ़ते थे, 14-14 घंटा पढ़ते थे, पागलों की तरह पढ़ाई की। लेकिन आज वो लाइफ में किधर का किधर निकल गया, और मैं लाइफ में किधर का किधर रह गया। हाउ मेनी ऑफ यू नो वन सच लूजर इन योर लाइफ in 10th standard who was with you in school? और आप क्लियर थे इसका कुछ नहीं हो सकता है लाइफ में, और आप सारे काउंट में वो बंदे से अच्छे थे, लेकिन आज जब आप लाइफ में पीछे देखते हो तो वो किधर का किधर निकल गया और मैं किधर का किधर रह गया। तो उसमें और मेरे में फर्क क्या था? प्लीज टेल मी, वो बंदे में और मेरे में फर्क क्या है? बाय द वे, आप नसीब बोलो, भगवान बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन प्लीज कुछ जवाब दो। ऐसा क्यों होता है कि मुझे इतना पता है, आता है, मालूम है, मैं इतना ऑनेस्ट था, सिंसियर था, सब था, तो वो लाइफ में किधर का किधर निकल गया और मैं किधर का किधर रह गया? भगवान, लक, हिज फादर एट बैंक बैलेंस, आई डिड नॉट, उसका पापा अंबानी है, वो कर सकता है, मैं बंबानी हूं, मैं नहीं कर सकता। यू नो व्हाट, इम्प्लीमेंटेशन के अलावा कुछ नहीं। आपको ऊपर से जो लेप लगाने लगा, उसको इतना पता था, इतना मालूम था, उसको अपने स्ट्रेंथ वीकनेस ये वो तुमको जो करना है सब करो, उसको सब मालूम था, उसको इतना पता था, और उसने इतना इम्प्लीमेंट कर दिया। और हमको इतना पता है, हमने इतना सा इम्प्लीमेंट किया है, आगे कोई फर्क नहीं है। ऑल ऑफ अस आर योगेश भाई पुअर इन इम्प्लीमेंटेशन। माय पॉइंट इज, बंदे ने जितना इम्प्लीमेंट कर लिया उतना बंदा आगे निकल गया। वो होशियार था, वो विशियस था, वो अच्छा था, बुरा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इम्प्लीमेंटेड बेटर देन यू एंड मी, फुल स्टॉप। He knew his limitations and he did damn well with whatever he knew, and he implemented phenomenally well. Steve Waugh was not the best of the batsmen in the world in the test world.
But Steve Waugh really put a price on his wicket. Therefore, he was one of the most successful captains of Australia, and he always found his place in the team क्योंकि वो अपनी विकेट फेंकता नहीं था. He was aesthetically not the most beautiful batsman in the world, लेकिन वो अपनी विकेट फेंकता नहीं था. माई पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन. ये सारे सक्सेसफुल लोगों में ऐसा क्या है जो अगर मेरे में आ गया तो मैं भी इनके जितना सक्सेसफुल बन सकता हूँ अगर मेरी इच्छा हो तो. मैं नहीं बोलता मोदी बनो, लेकिन अगर आपको मोदी बनना है तो मोदी में ऐसा क्या है जो मेरे में आ गया तो मैं भी उसके जितना सक्सेसफुल बन सकता हूँ अगर मेरी इच्छा हो तो. बाय द वे, आपको मोदी नहीं बनना है, आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है. बट इवन इफ यू वांट टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल वर्जन ऑफ योरसेल्फ, what is it that is missing in you, what is it that is lacking in you, which if you have it, even you will be as successful as you want to for your own self. आपकी इंडस्ट्री में अगर आपका कोई रोल मॉडल है, कच्छ समाज में अगर आप किसी को देखते हो, and if you want to be a logistics champion like Ashok Bhai or whatever, if you want to be a retail champion like Philip Bhai or whatever, इन लोगों में ऐसा क्या है जो अगर मेरे में आ गया तो मैं भी इनके जितना सक्सेसफुल बन सकता हूँ, मैं भी मेरा खुद का बेस्ट वर्जन बन सकता हूँ. तो मेरे में कमी क्या है, इनमें ऐसी क्या चीज है, इनमें कौन से गुण है, इनकी कौन सी ऐसी आदतें है जिनकी वजह से ये कर गए और मेरे से नहीं हो रहा है. विजय भाई सवाल का जवाब दीजिए ना, मेरे में क्या गुण आ गए तो मैं भी उनके जितना सक्सेसफुल बन सकता हूँ. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इंप्लीमेंटेशन एंड स्टेइंग फोकस. इनसे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है. टीम वर्क, concentrated effort, determined, because they understand growth is based on efforts of focus, determination and implementation. Strategy, confidence, discipline, hard work, focus. I'm just reading your chats, okay? They don't worry about consequences of their action. They have amazing discipline. They are not lazy bums. They are not lethargic. They don't have procrastination problems. Confidence, vision, clear goals. They are very motivating people, disciplined. They are bol bachan. I like that. They are good orators. Very nice. People management. They take responsibility for their actions. They wake up early. They read. They meditate. They don't have fear of failures. Very good, Jagdish bhai. What else? Kripaji, they are disciplined people. What else? Sense of ownership. Depend. Very good. They don't give excuses. Visualization, risk-taking ability, brilliant. They are very persistent. They are brilliant leaders. They motivate their team. Interest होता है उनको उनके subject में. They appreciate their team. They have fire under their bum. Interesting answer. Very good. They have burning desires, and we have acidity. They are consistent in their work. They think big. They are very disciplined. Wonderful. How many of you would like me to decode the secret of how to be the most successful version of yourself? I'm repeating the question. How many of you would like me to decode the secret of how to be the most successful version of yourself? If you want, then please write me. लोग 7 हैबिट्स देते हैं ना, मैं आपको, और बाद में 5 साल के बाद 8th हैबिट देता ना, मैं आपको ऑल हैबिट्स दे देता हूँ. रेडी? अभी भी आपको नॉलेज एक्वायर करने का कीड़ा नहीं गया ना. मनन भाई और दो, मनन भाई और दो. हमको मालूम नहीं है आप जो भी दोगे उसका हम करेंगे क्या, लेकिन और दो. हमारा बचपन से ही वायरिंग है, और ज्ञान ले लो, मजा आता है. वैसे भी घर पे बैठ के क्या करेंगे, तो चलो कुछ अच्छा सुन लेते हैं, एटलीस्ट पॉजिटिव तो रहेंगे लाइफ में. हम उखाड़ेंगे क्या, मैं बता तो दूंगा, लेकिन आप करोगे क्या उसका. आई जस्ट एस्टैब्लिश्ड अ मिनट अगो, नॉलेज मेक्स नो ब्लडी डिफरेंस इन आवर लाइफ, इट्स ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन. लेकिन हमारा हार्ड वायरिंग गया नहीं है. प्लीज दे दो, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो. मैं ये बोल रहा हूँ, फिर भी लोग लिख रहे हैं मी. ओके फाइन, ठीक है, बता देता हूँ. Ready? Let me decode the secret of how to be the most successful version of yourself. Ready? On the count of 1, 2, and 3. And I have decoded the secret of how to be the most successful version of yourself. Successful people are committed, focused, willpower, disciplined, dedicated, determined, good worker, good planners, hardworking, strong, decisive, courageous, time management, team management, powerful, risk takers, clarity of thoughts, reputation, great people skills, growth oriented, good industry contacts. They must be a good communicator. They must be in the right business at the right time. और मैं अगर सुजलॉन के शेयर लेता हूं तो वो कंपनी बैठ जाती है, मैं येस बैंक के शेयर लेता हूं तो वो कंपनी बैठ जाती है. दे हैव गुड फैमिली बैकग्राउंड. उसका पप्पा अंबानी है, वो कर सकता है. मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मेरे से नहीं होगा. दे आर विजनरी. वो लोग अपने आप को सॉलिड बेचते हैं, 1 नंबर का बेचू है. दे आर रेडी फॉर चेंज. दे हैव अमेजिंग सेल्फ बिलीफ. दे आर मोटिवेटेड, बोल्ड, बिलीवर इन गॉड. भगवान की उसके ऊपर मेहरबानी है. दे आर लकी. मनन भाई, मेरी कुंडली में शनि मेरे को नड रहा है. भाई साहब, सबकी कुंडली में शनि होता है, खाली आप ही को नड रहा है.
They are good reader, convincing ability, knowledgeable, kind, compassionate, leadership ability, flexible, etc. कुछ रह गया क्या? सर आप मितेश भाई अगर आप लक में नहीं मानते तो मत मानो, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी पूजा पाठ करते कि भगवान कोविड-19 में से हमको बाहर निकालेगा। मेरा भगवान के साथ कोई दुश्मन नहीं है, मैं जैन आदमी हूँ, खाने पीने में भी जैन हूँ। I just believe God is very busy saving people's lives, so not to disturb anything else. सब आ गया भाई साहब, मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव आई कवर्ड एवरीथिंग that you people wanted to say, said, you were wanting to say but you did not find words? कुछ छूट गया है क्या? अगर कुछ छूट गया है तो चैट बॉक्स में डालो। ऑलमोस्ट बोल रहे हो तो बताओ क्या छूट गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आधा लॉयर हूँ, एटसेट्रा डाला है, डाल दो एक दो अगर थोड़ा बहुत रह गया है तो। इंटेग्रिटी, दे कीप देयर वर्ड, आपने लैंडमार्क किया होगा पक्का। हाँ पर यही सारी आदतें लगेगी ना इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसके लिए तो इनसे हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। मुबारक हो, ये सारी चीजें आपको कितने सालों से मालूम है। 7 हैबिट्स ये थी ना, ये लो मुफ्त में दे दी 40 मिनट में, कोई 400 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। खींच लो ये पिक्चर का फोटो, हो गया आपका काम, बन जाओ आप प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल। क्यों नहीं हो रहा है? आई कांट सी योर फेस बट येट आई कैन सी आप लोग थोड़े मायूस हो। मनन ये सब मेरे को पता है, ये सब तो मालूम है, आपका प्रॉब्लम पता है, मालूम है। मैंने तो पहले ही बोला नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस। हम फंस रहे हैं बार बार घड़ी घड़ी। आई टेल यू व्हाई वी आर नॉट हैप्पी लुकिंग एट दिस स्लाइड। बाय द वे किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्कशॉप में जाओगे ना, 1 दिन प्रोग्राम, 2 दिन प्रोग्राम, व्हाटएवर, नचा नचा के कराएंगे, एंटरटेनमेंट स्टाइल से कराएंगे, बाबागिरी स्टाइल से करेंगे, मोटिवेशनल स्टाइल से करेंगे, रिलीजियस डिस्कोर्सेस यूज करके सिखाएंगे, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस यूज करके सिखाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमको ये सब ऑलरेडी मालूम है। हम ट्रेनर लोग खाली ये सारी चीजें थोड़ी सरल भाषा में बोलते हैं, इन अ वे बोलते हैं कि आपके मन को छुए तो आप लोग बोला सही बोलता है, मजा आ रहा है, और बोल अच्छा लग रहा है। बेसिकली कभी कभी वी जस्ट स्ट्राइक सम कॉर्ड्स हियर एंड देयर, उसका थोड़ा बहुत टेम्पररी बुलबुला निकलता है और बाद में सब अपने आप उड़ जाता है। I'll tell you why you guys are not happy looking at this slide, because all of you want success when right now. No, you are Kachis, na, you want yesterday. Some of you are Marwadis, you definitely want yesterday. गुजराती को आज और कल चलेगा, मराठी आदमी 1 हफ्ते के बाद आएगा तो चलेगा। All of you want success yesterday, और ये सारी आदतों को मास्टर करने के लिए 1 जन्म लगेगा, और मेरे पास आजकल टाइम नहीं है। मैं घर पे बैठा हूँ, मैं चिंता कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास लाइफ में कभी टाइम था ही नहीं, कोविड-19 तो बहाना है। ये सारी आदतों को मास्टर करने के लिए 1 जन्म जाएगा, और मेरे को सक्सेस चाहिए येस्टरडे, और इसके लिए मैं वापस फंसा हुआ हूँ। इसमें अच्छा बुरा सही गलत राइट रॉन्ग कुछ नहीं है। मैं किसी के जख्मों को कुरेदने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके सामने थोड़े हार्ड हिटिंग फैक्ट्स बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको 7 घंटे एक दूसरे के साथ निकालने हैं। तो ये फाउंडेशन ले करेंगे तो ढंग से इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे तो लाइफ बदलेगी। अब एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, बचपन में बहुत सारे लोगों ने इंकी पिंकी पोंकी ऐसा कुछ खेला होगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेला होगा। स्लाइड को देखो, कोई भी 2 आदतें उठा लो आपकी पसंद की, कुछ दिमाग में चलाओ ब्लाइंडली, कोई भी जो 2 आदतें, जो 2 शब्द आपको पसंद है ना, जस्ट टाइप ये 2, just type any 2 habits. I'll make you do a very simple thing as an act of introspection. Just pick up any 2 habits that you see from the slide and type it. Two, Gautam, you just picked 1. Nilesh bhai, you just pick 1. 2 ले लो ना, focus and discipline. Okay, very good. 2, आप लोग सब एक ही दे रहे हो, मैं 2 बोल रहा हूँ। वेरी गुड। कोई भी 2 आदतें, खाली ये 2 आदतें मास्टर की, बाकी सब छोड़ दिया, खाली ये 2 आदतें मास्टर कर दी। सो लेट्स पिक 1 पर्सन कॉल्ड विजय सावला। 1 मिनट, द चैट इज टू फास्ट। विजय भाई आपने कोई 2 आदतें पकड़ी, कहाँ है विजय सावला? आई एम सॉरी, मैं राहुल गाला ले लेता हूँ। हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड। तो राहुल गाला, आज के बाद खाली हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड मास्टर कर लिया, अपने मन पे हाथ रख के बोलो धंधा डबल होएगा कि नहीं? चलो डबल नहीं होगा, डूबेगा तो नहीं ना। एटलीस्ट मैं आज 15% कर रहा हूँ तो मैं 30% कर सकता हूँ कि नहीं, अगर खाली ये 2 आदतें मास्टर कर ली तो। मैं कोई भी 2 आदतें मास्टर करूँ ना, वो भी सफिशिएंट है मेरा धंधा डबल करने के लिए, या मेरी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो अब एक एक्सरसाइज करते हैं। आप तो अटक गए हो, ये सारी आदतों को मास्टर करने में 1 जन्म जाएगा, और मेरे को सक्सेस चाहिए येस्टरडे, और ये सारी आदतों के लिए मेरे पास टाइम नहीं। तो आप करोगे क्या? शॉर्टकट चाहिए? इफ यू वांट अ शॉर्टकट प्लीज टाइप शॉर्टकट। बाय द वे फिलोसॉफी मत जानना, शॉर्टकट नहीं होते लाइफ में। मैं दे रहा हूँ ना आपको, क्या प्रॉब्लम है आपका? इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। कुछ शॉर्टकट्स होते हैं लाइफ में, हर चीज के लिए स्ट्रगल करना जरूरी नहीं होता है लाइफ में।
वेरी गुड, आई गिव यू द शॉर्टकट. ओके, व्हाट इफ आई टोल्ड यू खाली 4 चीजें मास्टर करने की जरूरत है. अगर ये 4 चीजें मास्टर कर ली, all of this automatically implemented in your life, whether you know this or not and whether you master this or not. और आप ये सारी चीजों के पंडित बने या ना बने, मतलब आप ऑनरिंग वर्ड के पंडित बने या ना बने, ये 4 चीजों को मास्टर कर लो, आपका धंधा डबल हो जाएगा, आपकी बीवी खुश रहेगी. इफ यू आर नॉट मैरिड, योर गर्लफ्रेंड विल बी हैप्पी विथ यू, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, चलेगा. वुड यू लाइक टू नो व्हाट दीस 4 थिंग्स आर? आई गिव इट टू यू. पर लेकिन वापस कीप चेकिंग, मेरे को कितना कीड़ा है, और नॉलेज दो और नॉलेज दो. सवाल ये मनन ये नॉलेज तो दे देगा, मैं करूंगा क्या? तो पहले बिफोर आई गिव यू व्हाट दिस 4 आर, आई वांट टू डू एन एक्सरसाइज विथ यू. पिक अप अ गोल दैट यू वांट टू गेट डन इन द नेक्स्ट 7 days ऑफ योर लाइफ. पिक अप अ गोल दैट यू वांट टू डू नेक्स्ट 7 days ऑफ योर लाइफ. आपको एक अजम्पशन के साथ खेलना है कि कल लॉकडाउन खुल गया. अगर कल लॉकडाउन खुल गया तो 7 ही दिन है मेरे पास, बाद में उद्धव ठाकरे वापस बंद करेगा, ऐसा सोचो. आर्टिफिशियली मेक दिस अप. मेरे पास 7 ही दिन है, कल लॉकडाउन खुल गया, आने वाले 7 दिन में गिव मी वन मोस्ट important result you want to produce in your business, one most important critical business in your life which you want to get done in the next 7 days only. Urmila madam, blueprint of my life is very vague. 7 दिन में धंधे में अगर आप काम नहीं करते हो तो घर में आपको आने वाले 7 दिन में गिव मी वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट यू वांट टू प्रोड्यूस. और इसके ऊपर और इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है. सेल माई स्टॉक नहीं, 20 लाख का स्टॉक बेच दूंगा, 3 नए क्लाइंट ऐड करूंगा. वेरी गुड, आई लाइक दैट. डू सेल्स ऑफ 31 lakhs. स्टार्ट वेजिटेबल सेलिंग बिजनेस. जगदीश भाई 7 दिन में नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल. बी रियलिस्टिक. 7 दिन में मैं क्या कर लूंगा? मेरा इतना पैसा अटका है, मैं इतनी उगरानी कर लूंगा. 1 महीने का मेरा जो सेल्स का टारगेट है वो मैं 7 दिन में कर लूंगा. मैं मेरे 30 लोगों को, संदीप भाई, मैं मेरे 30 लोगों को मिलूंगा क्यों? मैं मेरे 30 कस्टमर को क्यों मिलूंगा? 30 कस्टमरों को मिलूंगा और कम से कम 25 लाख का परचेज ऑर्डर लेके आऊंगा. Get more specific, guys. Specific is terrific. No research, no restructuring. Give me a goal जो कोई मेजर कर सके. मुकुंद भाई, नो न्यू प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट लॉन्च करके इतना सेल करूंगा. मनोज भाई, फोकस कोई गोल नहीं होता है. अजीत भाई, पीपल कोई गोल नहीं होता है. डेवलप अ मॉडल विच गिव्स कंटिन्यूअस कस्टमर टू सर्व देम. हिरेन भाई, 7 दिन में नहीं हो सकता है. गेट रियल. 7 दिन के बाद उद्धव वापस बंद कर देगा. सबसे जरूरी क्या है आने वाले 7 दिन में? जगदीश भाई, क्लाइंट के साथ बात क्यों करनी है? किम सो मजा मान नहीं. हाउ मच ऑर्डर यू वांट, हाउ मच कलेक्शन यू वांट टू डू. रीऑर्गेनाइज योर बिजनेस इज नॉट अ गोल. Guys, I'm reading your feedback and giving you answers. Manoj bhai, no fresh orders. Fresh orders worth so much. Minimum 1 crore order as monsoon is approaching and we are into rainwear. Brilliant, Priyank bhai. I like it. मेरे को 1 crore का टर्नओवर करने का है, 7 दिन में मेरे को उठा लेने का है. CFA batch of 12 students finalized. Very good answer. अभी आप लोगों ने ये गोल लिखा है. Take up a notepad, write down this goal of yours and please इस तरह से लिखो कि कोई अगर 7 दिन के बाद पूछे ये हुआ कि नहीं तो आप उसको बोल पाओ हाँ मेरा हो गया. Get 3 employees which are मतलब 3 पोजीशन है मेरी, उसको मेरे को फिल करना है. आई अंडरस्टैंड. प्रोडक्शन 50% से बढ़ा दो. आई अंडरस्टैंड. कैश कलेक्शन कितने रुपए का साहब? उगरानी 12 लाख की और धंधा 10 लाख का सेल करने का है. वीरल भाई, थैंक यू सो मच, वेरी प्रैक्टिकल आंसर. आप सब लोगों को समझा ये गोल क्या है? अगर ये गोल को मुझे हिट करना है, मैं 3-4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. मेक अ डिटेल्ड एक्शन प्लान. व्हाट आर यू गोना 40 lakhs कलेक्शन. अशोक भाई, आई लव योर आंसर. वेरी सिंपल, वेरी प्रैक्टिकल, मेजरेबल. मेरे को दिखेगा ना 40 लाख हुआ, 25 लाख हुआ, 30 लाख हुआ, क्या हुआ. If you want us, we'll even manage you if you request for it. डिजिटल अप्रोचिंग स्टूडेंट्स, ये सब टाइम पास है. कुणाल भाई, मैं डिजिटल मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी अप्लाई करूंगा. अपने विवेक भाई KCF को उनको फोन करो, he'll set it up for you. तो 7 दिन में कितने क्लाइंट क्लोज करोगे? मेरे को कोई मार्केटिंग कुछ नहीं करना है. व्हाट इज द रिजल्ट आई वांट एट द एंड ऑफ इट? 3 days इंस्टेंट डिस्काउंट अगेंस्ट कैश डिस्काउंट 25%, टारगेट 50 लाख. अच्छा लगा, वेरी गुड. 2 कस्टमर चाहिए जो मेरे से लोन ले लेंगे, 2 लोन का सैंक्शन कराना है. वेरी नाइस, ब्रिलियंट. अभी अगर मेरा ये रिजल्ट है तो इसका डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाओ. गो फॉर क्वांटिटी, डोंट गो फॉर क्वालिटी. अभी का अभी नोटपैड लो एंड राइट डाउन सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि मैं ये 31 लाख का सेल्स करेगा कैसे. मेरे को 2 सैंक्शन लेटर निकालने हैं, तो इसके सारे के सारे स्टेप्स लिखो. गो फॉर क्वांटिटी, गो फॉर डिटेल्ड, मेक अ डिटेल्ड एक्शन प्लान राइट नाउ. प्लीज राइट बेयर मिनिमम 10 15 20 एक्शंस. 3-4 एक्शन लेने से कभी किसी का लाइफ में रिजल्ट हुआ नहीं है. उर्मिल भाई, 5 लाख रुपए कलेक्ट करने का है, एक्शन प्लान लिखो राइट नाउ. ऑल ऑफ यू ऑन योर नोटपैड, राइट डाउन योर डिटेल्ड एक्शन प्लान. ये रिजल्ट अचीव कैसे होगा? मैं 3 मिनट चुप बैठने वाला हूँ और आप लोगों को ये डिटेल्ड एक्शन प्लान लिखना है. बाय द वे, अगर आप ये डिटेल्ड एक्शन प्लान नहीं लिखोगे सोच के कि ये सब तो मेरे को पता है, ये सब तो मेरे को आता है, ये सब तो मेरे को मालूम है, आने वाले 7 घंटे आपके लिए वेस्ट है.
डू दिस एक्सरसाइज. मैं एक बहुत बड़ा पॉइंट एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ. इट इज रेलिवेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू राइट दिस डाउन, ताकि आप स्पेक्टेटर की तरह इसको ना करें, आप प्लेयर की तरह मेरे साथ वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करें. देखो वेबिनार है, आपकी शक्ल नहीं देख सकता, बाकी एक एक को पकड़ पकड़ के काम करा था, और ये रेस्ट्रिक्शन है, 350 लोगों को कैसे हैंडल करेगा मैं. प्लीज राइट डाउन एंड मेक अ डिटेल्ड एक्शन प्लान. डोंट थिंक यू नो इट एंड लेट इट नॉट बी इन योर हेड. कल अमरीश भाई ने भी बोला था, डोंट कीप इन योर हेड, राइट इट डाउन. लिखो 3 मिनट में, लिखो 7 दिन 10 लाख का सेल करना है, कैसे करूंगा. लेट अस सी हाउ मेनी एक्शंस यू कैन कम अप विद, एंड इफ यू राइट डाउन द नंबर ऑफ एक्शंस that you have come up with. 3 minutes, your time starts now. Vivek bhai, I will need 10 more minutes. I'm just getting engrossed with these people, so please bear with me. Go for detailed action plan. The minute you're done, type how many actions did you come up with. ओके परफेक्ट. नाउ जब टाइम आएगा ना ये एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपके साथ कुछ कुछ होगा और उसकी वजह से ये एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट नहीं होगा. आपकी ऑफिस में एक आदमी है रामू, आपने रामू को बोला कल शाम, गाइस आई जस्ट नीड 5-7 more minutes, just bear with me, we are at a critical juncture and I want to set you people up for tomorrow, okay. सो आपकी ऑफिस में रामू करके एक लड़का है, आपने उसको बोला कल शाम तक मुझे ये काम करके देना, और रामू ने बोला हो जाएगा. अब कल जब रामू आए, जब आप रामू को मिलोगे शाम को 6 बजे, आप रामू को पूछोगे मेरा काम हुआ क्या, तो रामू बोलेगा नहीं हुआ. And you will ask him क्यों नहीं हुआ, तो रामू will come up with reasons, excuses, rationalization, justification, internal condition, external problem जिसकी वजह से काम नहीं हुआ. Fair enough. By the way, आपकी लाइफ में एक और रामू है, you know उसका नाम क्या है, उसका नाम है गिरीश मारू, अशोक चौधरी, दिनेश गड़ा, भूपेंद्र पंचाल, अश्विन पोपट, किशोर गड़ा. जब टाइम आता है ना काम करने को, हम लोग भी यही टाइप के रीजंस, एक्सक्यूजेस, रैशनलाइजेशन, जस्टिफिकेशन, इंटरनल कंडीशन, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स बोलते हैं. पर ये सारे रीजन ऊपर ऊपर के लेयर्स है. ध्यान से देखोगे, डीपली जाओगे, नॉन पर्सनल, नॉन कन्फ्रंटेशनल वे से अगर देखोगे और इसको अनियन के लेयर की तरह पील करोगे, तो आपको दिखेगा ये सारे के सारे रीजंस के नीचे टाइम, फोकस, क्लैरिटी और रियलिटी के अलावा कुछ नहीं है. हम लोग कल ये चारों के चारों पहलू को बहुत डीपली घुसने वाले एक एक में, और कल दोपहर को 11:30 बजे के पहले मैं आपको साबित करके दे दूंगा कि कितने भी रीजंस और एक्सक्यूजेस आप लेके आओगे ना, अगर मतलब आपके हो या कस्टमर के हो या एम्प्लॉय के हो या वेंडर के हो, ये 4 के बाहर कुछ नहीं है. और अगर आपने ये 4 की पकड़ ली, एंड दीज आर द प्रोडक्टिविटी शास्त्रस दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट, अगर आपने ये इंप्लीमेंट कर लिया, आपका एक्शन प्लान इंप्लीमेंट हो जाएगा. लाइफ में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मैंने गोल सेट किया कि आने वाले 1 महीने में, 1 हफ्ते में मैं ये रिजल्ट अचीव करूंगा, और मैंने एक्शन प्लान बनाया और वो नहीं हुआ. हियर इज योर होमवर्क. आपने एक्शन प्लान लिखा है, आपको डेविल्स एडवोकेट खेलना है, और आपको जी भर के आपके फियर्स को बाहर निकालना है. ये एक्शन प्लान क्यों नहीं होगा, प्लीज मेरे को लॉजिक, एक्सप्लेनेशन, रैशनलाइजेशन, मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, COVID-19 प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स, जो लिखना है लिखो. give me a list of all possible reasons and excuses, rationalizations and justifications that you can come up with कि ये action plan implement क्यों नहीं होगा. Why will this action plan not get implemented? I want you people to play the devil's advocate in your life और सारा negativity बाहर निकालो.
सारे प्रॉब्लम्स बाहर निकालो, कल एक एक की कमर तोड़ देंगे when we get into the depth of the subject, that how beneath and beyond all of these things that you are writing, the only four things that it will boil down to is time, focus, clarity and reality, nothing more, nothing less. आपका होमवर्क वापस रिपीट कर रहा हूं, लिस्ट डाउन ऑल रीजंस एंड एक्सक्यूजेस यू और कस्टमर और एम्प्लॉई और वेंडर और एनी काउंटर पार्ट और गवर्नमेंट विल गिव यू, बिकॉज ऑफ विच आपका ये सपना टूट जाएगा. आपकी इच्छा है, आपकी नियत है, आपको ये करना ही है, आपका कमिटमेंट भी है, आपका इंटरेस्ट भी है. कुछ लोगों की तो ठुकी हुई है, नहीं करोगे तो वाट लग जाएगी. आई अंडरस्टैंड दैट. Make a huge list of reasons and excuses that you or somebody else gives you because of which this will not get done. How many of you understood my question? If you understood my question, please write understood. Please make a detailed action plan of all these reasons. आप लोगों का Q&A ना मैं दो सेशन के बाद लूंगा, क्योंकि ये जो भी आप बोल रहे हो ना, कल टाइम फोकस क्लैरिटी रियलिटी सिखाने के बाद अपने आप आपके 10 में से 8 सवाल ऐसे ही उड़ जाएंगे, क्योंकि जवाब इनमें छुपे हुए. We are going to go into depth of these four tomorrow. Make sure you come. If you know somebody in your life who you think wants to master this whole thing of implementation, call them for this webinar tomorrow. We have a few seats more open. Vivek bhai ko tension denge, pressure denge. He'll figure some way out of how to add more people and stuff like that. And if you are going to do the assignment of listing down reasons which you or somebody else will come up with why you are not going to achieve this goal, या ये सारे problem आ सकते हैं. If you are going to do this assignment, please type the word promise. मैं ये assignment करके कल webinar में आऊँगा. So please write the word promise if you are going to do this assignment. 360 लोग में से 125 लोग जवाब दे रहे, 100-125 लोग जवाब दे रहे, बाकी के लोग आई प्रॉमिस यू एक्सरसाइज करो. आपको मेरे को जितना जज करना है ना, 2 और सेशन जाने दो, वेडनेसडे और थर्सडे शाम को आपको मुझे जितना जज करना है करो. तब तक मेरे में फेथ रखो, मैं आपको जो करवा रहा हूँ आप मुझे करवाने दो. आई प्रॉमिस यू इट विल बी वर्थ योर टाइम, और मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, मैं बातें नहीं करूंगा. इनफैक्ट आप खुद सोल्यूशन निकालोगे मेरे साथ इन दिस टाइम. So if you're going to do your assignment, you've typed the promise for yourself. तो जितने भी लोगों ने honor your word बोला है ना, keep my word बोला है ना, this is the word you've given to yourself. Show up tomorrow morning at 10:30. Tell people around you. And tomorrow the topic is going to be मनन, मेरे जो भी reasons हो, या customer के जो भी reasons हो, या government के जो भी reasons हो, मैं आपको दिखा दूंगा, साबित कर दूंगा through laws of productivity कि वो time focus clarity reality के बाहर कुछ भी नहीं है. Day 3 will be अभी इसका करना क्या है. एंड डे 4 विल बी हार्ड. डे 4 से हम लोग हार्डकोर लाइव इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे. पर आज कल और परसों फाउंडेशन है, बिना फाउंडेशन के मैं आपको, बिना तैयारी के मैं आपको वॉर में नहीं भेजेगा. फेयर इनफ गाइस. सो whoever is going to be there tomorrow, please type tomorrow so that I know and you're committing that you'll be there. And if you know someone in your life who you would like to participate in this webinar tomorrow, मैं कल 5 मिनट में आज जो भी किया उसका रिकैप करूंगा. I will do my best to make sure that everything whatever I've covered today we give it to them in 5 minutes, and then we'll add to them. So if you're going to invite somebody for tomorrow because you think farak padega, get your employees on this, get your team A, team B, all your people. It's anyways free. वो लोग वैसे भी घर पे बैठे हैं, they will learn implementation. So if you're going to invite someone for tomorrow, please type the word invite, so you know then Philip bhai and Vivek bhai can make some arrangement and get them on board. I promise you आप लोगों को बहुत मजा आएगा. 7 दिन दिए KCF ने. आई विल नॉट लेट यू डाउन. मेरे पास जितना पड़ा है मैं सब दे दूंगा. Some of you will request give me more at the end of 7 days. Thank you so much. So guys, that's all that we have time for today. Vivek bhai, Philip bhai, if you don't have any other agenda, we can shut things down today. Some of you have requested in the chat box my cell number and my email address. So I'm going to repeat it for you people. If you want to send your action plan to me, I don't promise कि मैं सब लोगों का देख पाऊंगा because there are almost 350 people here. If you want to send your action plan to me, or if you want me to look at something, or if you want to have a quick chat on WhatsApp, my cell number is 80970. By the way, you only ask questions. And we'll stick to the topic. I'm not going to entertain any other questions. My cell number is 80970 10410. And I'll repeat one more time, 80970 10410. And my email address is Manan, MANAN, M for Mumbai, A for Ahmedabad, N for Nasik, A for Ahmedabad, N for Nasik, Manan @ unleashed.in.
U for UK, N for Nasik, L for London, E for England, A for America, S for Singapore, H for Hong Kong, E for England, D for Delhi, dot IN as in India. So I for India, N for Nasik. So this is my cell number and email address. But guys, I'm answering too many people's phones and too many people's queries. Let us only stick to education, and let us only stick to the exercise that we've asked you people to do. So if there's a way, we will also send you the assignment through Vivek Bhai over SMS or email or something, but we're not making any promise. Yes, that's the correct one. manan@unleash.in is my email address, and this is my cell number. How do you log in tomorrow? You have to use the same link that you use today to log in tomorrow also. Same link that you people got today, you're supposed to register, come to the workshop from the same link tomorrow. If you are going to invite somebody else, they need to record themselves, they need to register themselves separately, and they will get a link that they can use. Don't share your link with them, it can create a problem. If they're not registered, the system will not allow them to come in. So I hope I've answered almost everybody's questions. That's all that we have time for. If you want to leave a feedback of how was today's session, you can just type it. I will read your answer. If you miss one of the sessions, sir, just put your query to me on WhatsApp. I'll answer it to you. How was today's session? Just type your feedback. If you have questions, send it to me on WhatsApp at an appropriate time. I will take your question from the WhatsApp chat into our workshop and answer it for everybody, so everybody gets the benefit of it. Tomorrow, we will deep dive into these laws of productivity, these productivity shastras, and whatever reasons and excuses people come up with. If you've done the assignment, you'll love tomorrow's session. Otherwise, it'll be more entertainment for you. All right, guys. So that's all that we have time for. Vivek bhai, Philip bhai, do you want to take it over? More tomorrow. Today was just warm up. Hey, Devang, good to see you. After a long time, we're connecting. Wonderful. Thank you so much for your nice words. Bye bye. Thanks a lot. You've been participating throughout the session. Yes, Gautam, if you are inviting somebody, ask them also to do the exercise. रिजल्ट लिखो, 7 दिन का एक्शन प्लान लिखो, और उसके बाद में सारे रीजन लिखो ये क्यों नहीं होगा, और कल मनन वो सारे के सारे रीजंस की कमर तोड़ देगा. Gulab Chand ji, thank you so much, sir. It's an honor to have you. Alpesh bhai, thank you so much. Mitesh, thank you for your kind words. Mitesh bhai, thanking all the panelists to put this program together. Thank you so much, Sandeep ji. We have not met, but yes, looking forward to our sessions. Abhay bhai, recording के लिए 2 दिन रुक जाइए. I don't know what is the arrangement. I will answer that question on Thursday or earlier once I have an answer. Jatin bhai, thank you so much. It's an honor to serve you people. Okay, Manan, thank you very much for the wonderful session. We will end this meeting answers. now. They're still typing the answers. We can end them. Whoever wishes to leave, this is pretty much the end. We will see you tomorrow morning at 10:30 sharp. Vivek bhai, we can just let it open for a few people to type their answers and then we can shut it down. Thank you, Anupam ji. Harish bhai, thank you so much. Bhavin bhai, please go ahead, shoot your question on WhatsApp and then I'll answer it to you. Girish bhai, thank you. It means a lot to me that you've come back. पंकज भाई, कल ग्रिल करूंगा, फिर रोस्ट करूंगा, फिर खिलाऊंगा. Gautam, if he wants to learn, he'll have to break his barrier. There's nothing else we can do. All right, guys, that's all that we have time for. Thank you so much. I'm going to see you people tomorrow. If your wife is a yoga trainer, sir, even she can use it. She's most welcome to come. Let her be there for whatever time she can, sir. Minal madam, you can write to me and one of my assistants will help you in making an action plan. No problem.
As of now, we will not be broadcasting this session on YouTube. We will be using Zoom only. Zoom can be downloaded on your laptop, Gautam. Just go to zoom.us, go to the download section, download it. I always recommend you people to participate in my workshops from a computer. It is much more effective and you can do some hands-on work on your computer also. No, I am not sure if you can use Zoom without downloading. I'm not sure. चिंतन भाई, pick up any simple goal. कितना sales करना है, कितना उघरानी करना है. We don't have to complicate it. Whoever wishes, you guys can. We finish today. I will tomorrow morning 10:30.